My name is Kiran Amir and Assalamu alaikum. My name is Kiran Amir and I am the Director of Operations at Parsa Echo Pakistan Super Hub. I would like to welcome you all to yet another Echo session in series of Hepatitis Echo. It is supported by unrestricted educational grant by Ferosens Laboratories Limited, and it's in collaboration with Pakistan Society of Hepatology. Today's session is case-based discussion with experts, and our expert for tonight is Dr. Zeeshan Ali. Before I introduce to our expert for tonight's session, we have to go through some standard announcements. We are part of a global movement called Project Echo, based in USA, with an objective to disseminate knowledge and best practices. We do protect patient privacy, so none of the information used here will used in this session will identify any individual or patient. For maintaining discipline, you all are muted, but we do encourage participation. So you can unmute yourself for questions and use raise hand option or chat box. By participating, you have given the consent for recording, and the recorded session will be available on our YouTube channel. Link will be shared by Haris in the chat box. For CME credits, please contact Uzair, our coordinator. His number is mentioned on the banner. CME credits are affiliated by Jinnah Sindh Medical University. For the convenience of spokes, the session is bilingual. Please speak in Urdu or English, whatever language you are comfortable in. Dr. Zeeshan Ali is a fellow of College of Physicians and Surgeons, Pakistan, and currently working as Associate Professor of Medicine in Jinnah Sindh Medical University and Jinnah Postgraduate Medical Center, Karachi, Pakistan. He has been involved in Parsa Echo Pakistan since the very beginning and been a true echo champion. He is eco lead in province of Sindh. Currently, he also holds the portfolio of Vice President, Pakistan Society of Hepatology. He is responsible for overseeing all the project related to Sindh and enrollment of spokes locally. We have two cases today, and Dr. Oj will be presenting the cases. So I will hand over to Dr. Oj. Dr. Oj, please. Ji, Assalamu alaikum. Uzair bhai, can you share the cases, please? Yes, I have shared the case number 1. Can you see the screen? Yes. Okay. Uzair, So I'm going to थोड़ा सा enlarge कर दें, थोड़ा सा पढ़ने में बेहतर हो जाएगा. ठीक है आज. Okay, so the first case is a 24-year-old female known case of chronic hepatitis B, presented in OPD with complaint of body aches and headache. She was diagnosed with HBs antigen positive 2 to 3 years back and took antiviral treatment that was tablet Entecavir 0.5 mg once daily for 1 year in 2018 to 19. On examination, her abdomen was soft and non-tender, chest was bilaterally clear. Family history was not significant. In the investigations, you can see at the time of diagnosis, her hepatitis B virus DNA viral load was very high, and she started on Entecavir at that time. And she came to us in September. Her CBC HB was normal, LFTs were deranged, and anti-HCV was negative, and HBs antigen was positive. In November, the viral load is still high. And in December 2021, the HBE antigen was positive, anti-HBE negative, and anti-HTV and anti-HIV was negative. And the fibroscan was done in December 2021, which showed F2 to F3 metaver score, and median stiffness was 10.3. Her ultrasound abdomen showed liver parenchyma was normal, no splenomegaly or ascites, no SOL. The questions regarding this case, Zaibe, can you scroll it down? The questions regarding this case are: what other investigations are required in this patient? And should we start antiviral treatment? How should we counsel this patient? Thank you. Thank you, Oj. It's very common case scenario which we come across while practicing in liver clinic when we are treating our patients. यहाँ पे important जो चीज समझने की है कि हेपेटाइटिस बी की जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट
टाइम बार्ड नहीं है। सी की ट्रीटमेंट रिलेटिवली सिंपल है कि एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन की है विद इवन ओरल एंटी वायरल एजेंट्स, लेकिन बी एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है और इट हैज़ टू बी फॉलोड, क्योंकि इसका वायरस का जो डीएनए है वो एम्बेड हो जाता है इनटू द सेल्स, और ये इवन पीसीआर नेगेटिव भी है, द डिजीज रिमेन्स इन द बॉडी. So the basic understanding of a physician treating a patient of hepatitis B have to understand that this is not a finite commitment with the patient. तो जो counseling I would start with the first कि कोई treatment या कोई investigation कराने से पहले you have to understand yourself as a physician and then you have to make your patient understand that कि finite नहीं है, दवा हो सकता है चले, दवा हो सकता है रुकी हुई हो in between, but the follow-up is for the lifelong for this hepatitis B. Coming to the case scenario कि जो आपका case scenario है, एक इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट ली है, उस ट्रीटमेंट में उस टाइम पे क्या वायरल बेसलाइन मार्कर्स थे वो हमें अभी अवेलेबल नहीं है. जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है कि कुछ अरसे इसने एंटीवायरल ली है लेकिन इसकी सीरो कन्वर्जन नहीं हुई है, इसकी बायोकेमिकल रिवर्शन नहीं हुई है, इसकी वायरोलॉजिकल जो है ना रिमिशन नहीं हुई थी. इन सब चीज़ों का मतलब क्या है कि इसका ALT नॉर्मल नहीं है, वो बढ़ा हुआ है, तो इसको जैसे बायोकेमिकल रिमिशन में नहीं है ये पेशेंट. इसकी सीरोलॉजिकल कन्वर्जन नहीं हुई है, सीरो कन्वर्जन, दैट मीन्स इसका HBe एंटीजन पॉजिटिव है. अगर अभी है तो डेफिनेटली उस टाइम पे भी होगा, तो वी डोंट हैव द प्रीवियस रिपोर्ट्स, लेकिन अभी अगर पॉजिटिव है और वो ट्रीटमेंट से नेगेटिव नहीं हुआ था तो सीरो कन्वर्जन नहीं हुई थी. वरना सीरो कन्वर्जन ये थी कि वो E एंटीजन जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाए और एंटी HBe पॉजिटिव आ जाए, तो दैट वुड हैव बीन सीरो कन्वर्जन. गुड थिंग इज कि ये D नहीं है. लेकिन इफ यू लुक इनटू द केस सिनेरियो कि ये पेशेंट अभी रिलेटिवली हायर ALT के साथ है, 163 इसका सितंबर में ALT था, 93 अभी है, more than twice than the normal, very higher load, E antigen positive. That makes a straightforward case of treatment. यहाँ एक और टीचिंग पॉइंट में आई वुड लाइक टू विद माय एक्सपीरियंस कि जो पेशेंट्स हाई ALT के साथ होते हैं उन पेशेंट्स के अंदर बाज़ औक़ात जो फाइब्रोस्कैन या इलास्टोग्राफी है वो ओवर प्रेडिक्ट करती है, ओवर कमिट करती है फॉर फाइब्रोसिस स्कोर्स, कि अगर पेशेंट का F3 F4 आ रही है या F2 F3 आ रही है, इट मे नॉट बी एक्चुअल फाइब्रोसिस, इट इज इन्फ्लेमेशन व्हिच इज इंक्रीजिंग द स्टिफनेस ऑफ द लिवर. तो अल्ट्रासाउंड मोडेलिटी या जो फाइब्रोस्कैन मोडेलिटी है वो इन्फ्लेमेशन रिलेटेड स्टिफनेस और फाइब्रोसिस रिलेटेड स्टिफनेस में डिफरेंशिएट नहीं करता, ठीक है ना. तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन, एक्यूटली इन्फ्लेम्ड लिवर भी अगर होगा तो उसमें भी इलास्टोग्राफी स्कोर्स हाई आएंगे. सो फाइब्रोसिस स्कोर हो सकता है जब ALT कम हो, पेशेंट की इन्फ्लेमेशन कम हो लिवर की, तो इट मे गो डाउन, ठीक है. बट स्टिल बिकॉज ऑफ द पेशेंट इज हैविंग हाई वायरल लोड, हाई ALT एंड E एंटीजन पॉजिटिव, दे ऑल वारंट द ट्रीटमेंट. ठीक. इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन इस वक्त आपने ये करना है कि कोई अक्यूट कॉज तो नहीं है. बाज़ औक़ात पेशेंट को जो है क्रॉनिक हेपेटाइटिस चल रहा होता है लेकिन उसको अक्यूट फ्लेयर्स आते हैं बिकॉज ऑफ अदर, वो ड्रग इंड्यूस हो सकते हैं, वो आजकल जिस तरह डेंगू का सीजन था या कोविड वगैरह के अंदर है, वायरल इलनेसेस के अंदर फ्लक्चुएट करते हैं ALT. वो ALT मे नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द हेपेटाइटिस B एक्टिविटी कि उसके वायरस जो है वो कर रहा था. तो दैट यू हैव टू एज अ फिजिशियन अंडरस्टैंड कि पेशेंट को कोई और कॉज तो नहीं है, वो डीरेंज जो हेल्थी. बाज़ औक़ात जो है ड्रग्स होती हैं, बाज़ औक़ात लाइफस्टाइल होता है, तो वो हमें देखना होगा. और फॉर दैट मैटर इस टाइम पे जो क्वेश्चन आपका था इसको स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा कि व्हाट नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन यू आर गोइंग टू डू एट दिस पॉइंट फॉर ट्रीटमेंट. कंफर्मेशन मेरा ख्याल है दिस केस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट, स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट. व्हाट वी हैव टू डू इज के एक्सक्लूड करते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस का, तो आप वो जो कॉमन कॉजेज हैं कि फैटी लिवर है और उसके लिए लिपिड और यू कैन सी द शुगर्स एंड हेपेटाइटिस E जो है ना, दैट यू कैन चेक कि इसको आप इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं और देन यू कैन स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट. काउंसलिंग के अंदर अगेन द पॉइंट वुड कम कि काउंसिल करना किस तरह से है, कि काउंसलिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि पेशेंट को इस चीज़ पे राजी कर लेना है कि लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है. दवा शुरू करने के बाद बंद करना, 1 साल का जो कॉमन हमारे यहाँ प्रॉब्लम आता है हेपेटाइटिस B के, वही 6 महीने दवा दे दी, साल दवा दे दी, दैट डजंट अफेक्ट द पेशेंट. हमें इस तरह नहीं ट्रीट करना है.
जो ट्रीटमेंट स्टॉप करने की इंडिकेशन होती है वो अगर हमने करनी है एंटीजन नेगेटिव में का बाज़ औक़ात कंट्रोवर्सी है, एंटीजन पॉजिटिव के अंदर अगर सीरो कन्वर्जन हो जाती है, पीसीआर नेगेटिव हो जाता है और 3 पीसीआर 6 मंथ अपार्ट नेगेटिव आते हैं, तो यू मे प्लान टू ग्रेजुएटेड जिसे कहते हैं ना प्लान जिसे कहते हैं ना वो स्टॉपिंग ऑफ द एंटीवायरल थेरेपी। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपने एएलटी फ्लेयर्स देखने होते हैं उसके, और you have to differentiate between a good and bad player. Again, this is the aspect which has to be dealt with the experienced liver physician or a pathologist per se, क्योंकि ये बड़ा ट्रिकी हो जाता है एट टाइम्स कि जो फ्लेयर्स हैं वो फ्लेयर्स गुड हैं या बैड हैं, इज इट गोइंग टू कम्प्लीटली एलिमिनेट एचबीवी, एंटी एचबीएस पॉजिटिव हो जाएगी इसके बाद, या पेशेंट वुड एंड अप विद एक्सेलरेटेड फाइब्रोसिस एंड may decompensate और जो है, so in that case we have to look into कि जो planned targeted जिसे कहते हैं ना स्टॉप हो और एक डिसीजन हो पेशेंट के साथ कि जो 6 महीने और साल का ट्रीटमेंट फाइनाइट ट्रीटमेंट बता देते हैं पेशेंट्स को इतने ले ले, ये डिस्करेज करना चाहिए और इस तरह से नहीं करना चाहिए हमें। Any question on this case from the audience? Now the question from a participant is, if we have taken a decision to restart the treatment, should we start with entecavir or should we start with the other available drug that is tenofovir? That's a very good question again. अब अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उस टाइम का फॉलोअप नहीं है, उस टाइम पे अगर वायरल लोड डिक्रीज हुआ था और ये रिकरेंस आफ्टर स्टॉपिंग द थेरेपी हुई है, जब तो बड़ा क्लियर वो है कि भाई ड्रग रेजिस्टेंस शायद प्रॉब्लम नहीं थी, इनएडिक्वेट ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट वाज द प्रॉब्लम। लेकिन ऑन ट्रीटमेंट अगर सप्रेस हुआ ही नहीं था मोर देन 2 लॉग कभी भी, या अगर मोर देन 2 लॉग सप्रेस हुआ और उसके बाद वापस ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट जो है ना वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया था, तो देन इज द क्वेश्चन ऑफ जो है ना रेजिस्टेंस। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ड्रग रेजिस्टेंस टेस्टिंग अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में, वी हैव टू गिव टेक दिस डिसीजन क्लिनिकली। आइडियली स्पीकिंग आई प्रेफर कोई भी एंटीबायोटिक या एंटीवायरल जो एंटीमाइक्रोबियल दवा अगर आप देते हैं, तो अगर आप रीट्रीटमेंट करना का प्लान करते हैं तो यू शुड गो फॉर ए डिफरेंट ग्रुप ऑफ ट्रीटमेंट। एक जनरल बेसिक रूल होता है एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी का कि अगर यू बिकॉज यू प्रिज्यूम दैट ट्रीटमेंट एज ए फेलियर, दो इन दिस केस this is not a treatment failure technically because it was stopped very prematurely कि 1 साल के अंदर और without any follow up stop हो गई थी as far as the data which we have. Any other question or comment? Analysis की जो नीचे दूसरे questions देख लें, let me see if we have answered all or if there is something remaining so that we can, should we start antiviral therapy? That's the question already we have discussed। और कौन सी एंटीवायरल देना चाहिए इसके ऊपर कोई बहुत वो नहीं है, क्वेश्चन भी आपका आप लोगों ने किया। In my personal preference, I start with a different salt when I treat the patients whenever they have stopped the therapy either prematurely or because if it is a case of drug resistance, definitely there is no other option than switching the therapy। But if it is a case of अगर आई हैव टू मेक ए डिसीजन, जिस तरह हम पब्लिक सेक्टर में प्रैक्टिस करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से एक ही सॉल्ट अवेलेबल होता है, तो इफ आई हैव टू रीस्टार्ट द पेशेंट इन दिस केस, इन दैट केस आई वुड स्टार्ट विद हायर डोज के जो रेजिस्टेंस के अंदर है। इफ आई एम स्टार्टिंग विद एंटाइविर अगेन, आई वुड स्टार्ट विद 1 milligram rather than 0.5 milligram। दैट इज अगेन another approach we can use to reduce the chances of resistance in these patients। Any question from the audience? Asad, do we have another comment? Probably Asad have शायद disconnect हो गया है, so or we can move to next case if we have got if there isn't any other question. So should I start the next case? If we don't have any question, then we can go for the next case.
Zarbhai, can you enlarge the screen? Before you start, Dr. Oj, participants can self and they can ask the question Can you and see they the can use the screen raised hand option as of well. case 2? Yes, so there we can see the screen, and all participants can unmute themselves, and they can, or the raise hand option, or they can chat, type in the chat, so we can make this interactive. Assalamu alaikum, Zeeshan. Dr. Asad here. Can you hear me? Sorry, yes, I think my laptop mic is giving a lot of trouble. Well, thank you very much. मेरे ख्याल में आपने सारे points cover कर दिए. I have been listening to you. और मेरे ख्याल में जो हमारे regular participants हैं, they should now know it very well कि B का treatment अगर शुरू करना है तो बंद नहीं करना unless के वो सारे criteria meet होते हैं जिनकी हम बात कर चुके हैं. और ये केसेस बार बार हमारे पास आते हैं और इनके शेयर करने का मकसद भी ये है कि पहले ट्रीटमेंट शुरू हुआ होता है और वो फिर ट्रीटमेंट जो है स्टॉप कर दिया जाता है और बाद में और अक्सर पेशेंट्स को शुरू में एक्सप्लेन नहीं किया जाता जो कि बाद में डिफिकल्ट होता है, स्पेशली एक ऐसे मरीज में. इसमें तो वायरस फिर पॉजिटिव था जिनमें वायरस भी नेगेटिव हुआ हो फॉर द टाइम बीइंग, और ये इट्स नॉट अ गुड थिंग. मेरे ख्याल में अगर कोई भी क्वेश्चन ऑडियंस की तरफ से है एंड कोई अपना कोई केस भी शेयर या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, सो एवरीबॉडी इज वेलकम. Otherwise we can move to the next case. जी, और मेरा ख्याल है next case शुरू करते हैं. Okay, sir. So the second case is a 32-year-old female presented in OPD with complaint of impaired LFTs, otherwise stable, no active issue. Her weight was 79 kgs and height 173 centimeter. BMI was calculated to be 26.4. At the time of presentation, the previous lab investigations she had were CBC and LFTs, as you can see, which were normal, and a PCR was also available, which was negative. And on examination, her abdomen was soft, non-tender, chest bilaterally clear, and family history was not significant. Further workup was done, and her CBC is normal, and LFTs were slightly deranged. And the cholesterol is 177, triglycerides are 121, HDL was 41, and LDL 120, and non-HDL was 136. Anti-HCV was positive, and HBS antigen was negative. Her PCR was still negative. The patient, as you can see, the patient has no previous history of antiviral treatment. Her ultrasound abdomen, which was done in December, showed enlarged liver, fatty texture with regular margins, and no ascites or splenomegaly. The questions, Zarbhai, can you scroll it up? The questions regarding this case are what other investigations are required in this patient, and what should be the follow-up plan, and how should we counsel this patient? Thank you. Thank you, Oj. Again, excellent case and very common case scenario which we come across in our medical OPDs and hepatology OPD. Deranged LFTs and previously probably treated or self-eliminated HCV in this particular case. And what you can see from the previous data is this patient available data is this patient is obese, not morbidly obese, but have obesity close to 27 BMI. Again, in an Asian woman, it would be significant here. And previous HCV, anti-HCV positive patient keeps on coming back and then with repeated HCV. That again is a part of the counseling, that we should counsel our patients that anti-HCV would remain positive for the rest of the life.
Yes, if the LFTs are deranged, once PCR has to be repeated. Otherwise, if 6 months apart, 2 PCRs are negative, then HCV is passed. The common problem which we come across in our society is कि anti-HCV पॉजिटिव होता है, पेशेंट को डराया जाता है और बार बार ये कहा जाता है कि हेपेटाइटिस हो गया है, एंड दे कीप ऑन कमिंग बैक टू अस कि भाई मुझे तो फिर हेपेटाइटिस हो गया, मुझे तो फिर हेपेटाइटिस हो गया. सो दिस anti-HCV मैटर अगेन नीड सम काउंसलिंग कि अगर एक दफा पॉजिटिव है तो दैट वुड रिमेन पॉजिटिव. हाँ, अगर LFT डीरेंज हो रहे हैं तो PCR करें, वरना अगर 2 PCR 6 मंथ अपार्ट नेगेटिव हैं तो वी डोंट नीड टू चेक इट अगेन एंड अगेन. एक चीज फिर ओबीस वुमेन के अंदर LFT डिरेंजमेंट जब उसके वायरल सीरोलॉजी नेगेटिव है, ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल करवाया हुआ है, शुगर करवाया है, these are two common risk factors for a young female with no other risk factor. This cholesterol is not bad at all. We can tolerate it, but फैटी लिवर enlarge दिया हुआ है और फैटी लिवर जो है ना टेक्सचर में दिया हुआ है अगेन. सो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज इज द commonest cause of deranged LFTs after viral hepatitis in our children across the world as well, and it was regarded as a non-pathological. Would you please excuse me? I have got a patient in ICU. Hospital is calling again. Excuse me for a minute or two, please. Dr. Zeeshan will be back soon. आपसे रिक्वेस्ट करनी है टू ऑल द स्पोक्स के अगर पास कोई केस है तो आप प्लीज हमारे साथ जरूर शेयर करें, और सबसे बेस्ट तो यही है कि आप लोग खुद इसको प्रेजेंट करें, एंड इफ यू वांट फॉर्मेट तो वो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं. डॉक्टर ज़ीशान इज बैक. ओवर टू यू डॉक्टर ज़ीशान. Thank you, Kiran, for taking care. I'm sorry, I had to take that call. अच्छा, वी वर डिस्कसिंग कि जो पेशेंट्स फैटी लिवर के साथ आते हैं और डिरेंज LFT के साथ आते हैं, तो जो कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं वो ओबेसिटी इज वन देयर दैट इज प्रेजेंट, एंड डायबिटीज इज अदर व्हिच एट दिस पॉइंट डजंट सीम टू बी. शुगर आपने स्क्रीन की हुई है फास्टिंग, एक शुगर रीडिंग है, वी मे हैव टू रीचेक इट विद HbA1c वगैरह या OGTT करा के कि impaired fasting ग्लूकोज एंड ग्लूकोज टॉलरेंस तो नहीं है. दैट मे बी वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स. कोलेस्ट्रॉल बहुत गड़बड़ नहीं है इसके अंदर. So looking into this patient, this likely is a fatty liver disease, which is after viral hepatitis most common cause of the cirrhosis nowadays. And it is not just in Pakistan or in the West, it is everywhere. Okay? We used to disregard the report of the fatty liver initially, कि शायद ये कुछ नहीं है, or we used to ignore it. And you can see the transition from ALT significantly जो है वो बढ़ा है इस patient के अंदर. So with this kind of ALT, you have to be very vigilant on follow-ups. इसका है. Immediately, should you bank on any treatment? Hold it. We have to look into investigate करेंगे. अब investigate क्या करना है हमने कि आपने एक तो non invasive जो fibrosis के scores हैं EPRI और FIB-4 वो apply करना है. If you apply मेरा ख्याल है EPRI और FIB-4 in this, it won't turn out to be, if I just do it in front of you, अभी जो इस डेटा के ऊपर जो हमें अवेलेबल है इसको that just give me a second, मैं इसको EPRI के लिए इसमें डाल देता हूँ. इसमें AST इसका जो है that is 87 and platelet count is 208. So the EPRI came out to be 1 in this particular case. ठीक है. So again that keeps that is coming around significant fibrosis. और FIB-4 अगर हम देखते हैं इसका, क्योंकि more than 1 generally that's what my practice is कि मैं एक से ज़्यादा जो है ना वो
मार्कर्स यूज कर लेता हूँ जस्ट टू बी इंश्योर कि भाई ये बॉर्डरलाइन केस है या क्लियर केस है फाइब्रोसिस का। 108 ALT अगेन 1.2। ये अब यहाँ पे ऑल्टरनेट जो FIF4 है आपको वो दे रहा है कि इसमें ऑल्टरनेट जो है आप यूज करें। एप्री कह रहा है कि सीवियर फाइब्रोसिस है, and this is very important point in teaching. That's why I always use more than one non-invasive method when we are assessing through fibrosis through a non-invasive methods. अब इसमें एप्री आपको जो है वो 1 दे रहा है, वो सीवियर फाइब्रोसिस दे रहा है, FIF4 जो है 1.2 दे रहा है, वो इनडिटर्मिनेट दे रहा है। 1.4 से ज्यादा जो है फाइब्रोसिस होती है और 2.4 से 5 से ज्यादा सिग्निफिकेंट फाइब्रोसिस होती है जो FIF4 के स्कोर होते हैं। अब 1.24 लेस देन 1 जो आ रही है तो वो कहता है ऑल्टरनेट मेथड है, अनडिसाइसिव है ये, एंड दैट्स वेयर द रूल ऑफ बायोप्सी कम अराउंड कि अब इसकी फाइब्रोसिस एक स्कोर बता रहा है नहीं है, या आप इलास्टोग्राफी में मेथड करेंगे। लेकिन अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट के मोर देन 100 के ALT के ऊपर इलास्टोग्राफी भी मैनी ऑफ द टाइम जो है वो ओवर प्रिडिक्ट करता है। ठीक है ना, कैप स्टडीज यू कैन डू इन दिस पेशेंट के फाइब्रोस्कैन विद कैप करते हैं क्योंकि फैटी लिवर के लिए वो ज्यादा बेहतर है, लेकिन लिमिटेड जगहों पे अवेलेबल है। वो अगर एक्सेस में आए आप इसकी इलास्टोग्राफी विद कैप कर सकते हैं। दैट कैन गिव यू ए क्लू कि इसमें डिजीज एक्टिविटी किस लेवल पर है। बट दिस पर्टिकुलर पेशेंट इफ वी आर प्लानिंग फॉर एनी थेरेपी may end up for the liver biopsy to confirm the liver cirrhosis or liver fibrosis, because जो फैटी लिवर की ट्रीटमेंट आप शुरू करने जा रहे हैं, देयर इज नो कंफर्म ट्रीटमेंट। सो इफ आई एम ट्रीटिंग दिस पेशेंट आई वुड लाइक टू लुक इनटू द फाइब्रोस्कैन पहला OGTT एंड HbA1c इन्वेस्टिगेशन के अंदर टू कंफर्म द जो है वो। देन आई वुड लाइक दिस पेशेंट टू गो इनटू द वेट लॉस प्रोग्राम एंड रीअसेस दिस पेशेंट बिफोर बायोप्सी अगेन। ठीक है ना, क्योंकि अभी ये इंडिटर्मिनेट स्टेज के अंदर है। इलास्टोग्राफी अगर आपको डेफिनेटली विद ALT हाई स्कोर्स देगा, लेकिन आई वुड लाइक दिस पेशेंट टू लूज 5 to 10% ऑफ द वेट एंड जो है एक्सरसाइज वगैरह के प्रोग्राम करके 3 महीने में मेरे पास वापस आए। इफ ALT रिमेन्स हाई और AST हाई रहता है तो आई वुड गो फॉर द बायोप्सी आफ्टर इंटरवल where I have seen 5 to 10% weight loss के बाद भी जो है ALTs नॉर्मलाइज नहीं हो रहे हैं। अगर पेशेंट के ALT AST नॉर्मल हो जाते हैं, जो कि बहुत कॉमन सिनेरियो है कि अगर डाइट और एक्सरसाइज को पेशेंट कंबाइन करता है 5 से 10% वेट लॉस करता है, तो ALT नॉर्मलाइजेशन इज अ रूल। बहुत रेयर है कि आपको ALT नॉर्मलाइजेशन ना मिले। ठीक है। The other thing which we are coming across very frequently is autoimmune hepatitis as well. It was thought to be an uncommon entity but in recent past, but we have seen with more serological tests available for autoimmune hepatitis, we are picking up more and more autoimmune hepatitis in these patients. Okay, is this particular case would go for that as well, evaluation of the autoimmune hepatitis, though seems to be fatty liver, obese women है, young women है, but still we cannot exclude that, and this is not uncommon. अगर मैं हेपेटाइटिस के 20-25 केस देखता हूँ तो उसमें से एक आधा जो है ऑटोइम्यून निकल आता है। कि अगर BC नेगेटिव केसेस देख रहे हैं तो फैटी लिवर बहुत कॉमन निकलता है, लेकिन ऑटोइम्यून अगेन इज नॉट अनकॉमन। जब हम एक्सटेंडेड ऑटोइम्यून लिवर प्रोफाइल या एंटीबॉडीज जो है वो चेक करते हैं, रेयर LKM और SLP और Ro52 और ये एंटीबॉडीज जब हम चेक करते हैं तो इसमें हमें ऑटोइम्यून प्रोफाइल पॉजिटिव आ जाती है, एंड दे टर्न आउट टू बी ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस एज वेल। इसकी अगेन इंपॉर्टेंस ये है कि इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। वी कैन प्रिवेंट सिरोसिस, वी कैन प्रिवेंट हेपेटिक फेलियर if we identify this disease. So evaluation for this particular patient is open, very likely to be fatty liver, but could be autoimmune fatty liver। अगर हम सस्पेक्ट करते हैं तो मेरा प्लान नेक्स्ट का फॉलोअप का ये रहेगा 3 month इंटरवल के ऊपर विद डाइट एंड एक्सरसाइज। आई वुड फॉलो विद दिस कि ALT इसका नॉर्मलाइज होता है नहीं होता है, वेट इसका कम होता है नहीं होता है, और देन फाइब्रोसिस कोर्स जो है इसको इलास्टोग्राफी और ये FIF4 के साथ इसको हम फॉलो करेंगे एवरी 3 months एंड लुकिंग इनटू द कोर्स। अगर 3 to 6 months के अंदर ALT नॉर्मलाइज नहीं हो रहा तो विल गो फॉर द बायोप्सी टू कंफर्म द फैटी लिवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें नीचे क्या है, स्क्रॉल कीजिएगा उजैर। उजैर जी जी, थैंक यू। तो फॉलो अप प्लान हमने इन्वेस्टिगेशन हमने डिस्कस की कि टू बिगिन विद वी लुक इनटू द फैटी लिवर,
और उसके अंदर नॉन इन्वेजिव मार्कर्स करेंगे, इलास्टोग्राफी करेंगे, और उसके बाद जो है इसमें अगर हमें रिपीटेड एएलटी डिरेंजमेंट मिल रही है तो ऑटोइम्यून का वर्कअप इज ऑन चार्ट, कि इस केस में हम ऑटोइम्यून का वर्कअप भी कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो है हमने इंटरवल के ऊपर एलएफटीज जो है देखनी है विद के डाइट और एक्सरसाइज के साथ, और वेट लॉस अगर हम कहते हैं तो फॉलो अप प्लान अगेन वी हैव टॉक्ड अबाउट। जी वजीर रहमान, आपने हैंड रेज किया हुआ है, अनम्यूट करें, आप क्वेश्चन करें। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हम लोग भी सस्पेक्ट करते हैं अपने पेशेंट्स में, तो आपके पास मेल टू फीमेल रेशो कितनी है? यूजुअली हमें तो ऑटोइम्यून डिजीजेज जो हैं ये फीमेल्स में मिलती हैं, तो आप यूजुअली कौन से टेस्ट से इनको जो है ये कंफर्म कर लेते हैं वैसे अपनी सेटिंग के अंदर? थैंक यू। अच्छा, एक्सीलेंट क्वेश्चन अगेन। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस जो हमने देखा है बहुत, मेरा ख्याल है मेरे पास जो केस सीरीज है वो 20-25 केसेस की है, जो लास्ट 3 इयर्स में जो हम लोगों ने डायग्नोज किए हैं, उसमें से शायद एक था पेशेंट जो कि ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस मेल था। ऑल ऑफ दोस वाज लेस देन 1% ऑफ द पेशेंट्स आई वुड से के मेल पेशेंट्स आए हैं। ऑल ऑफ देम ऑलमोस्ट वर द फीमेल पेशेंट्स। ठीक है, ओवरलेप भी इसमें बहुत था, जो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस के साथ है काफी सारे पेशेंट्स के अंदर। कमिंग टू योर क्वेश्चन कि क्या सेटिंग हम करते हैं, कब सस्पेक्ट करते हैं ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस इन पेशेंट्स में, तो यही डी रेंज एलएफटीज होते हैं जिसमें रिस्क फैक्टर्स बहुत नहीं है। इसमें इस पर्टिकुलर केस में शुगर्स नॉर्मल है, जो है आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है। फैटी लिवर अगेन मे और मे नॉट बी द कॉजेटिव एजेंट फॉर द डी रेंज एलएफटी। फैटी लिवर के कितने सारे पेशेंट्स हैं जिनके एलएफटी नॉर्मल भी आते हैं, but the only risk factor for the NAFLD straightforward is the obesity. लाइफस्टाइल हिस्ट्री वगैरह हमें पूछनी होगी कि सेडेंटरी तो नहीं है, अल्कोहल का इंटेक क्या है, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। लेकिन अब अगर हमें कोई बहुत क्लियर रिस्क फैक्टर फैटी लिवर का नहीं मिल रहा, या अगर हम फैटी लिवर सस्पेक्ट करते हुए इस पेशेंट को वेट लॉस और एक्सरसाइज के ऊपर डालते हैं, स्टिल वी डोंट गेट द एलएफटी करेक्शन। क्योंकि अगर पेशेंट अच्छी एक्सरसाइज करता है और वेट लॉस 5-7% कर लेता है तो एएलटी नॉर्मलाइज होना इज ऑलमोस्ट अ रूल। तो एलटी नॉर्मलाइज बिल्कुल ना हो तो लेकिन सिग्निफिकेंटली कम जरूर हो जाएगा। जिस पर्टिकुलर केस मेरे पास है, मैं देख रहा हूँ 105 एलटी है, तो इट इज बाउंड टू कम डाउन लेस देन 50 विद इन 1 मंथ, अगर पेशेंट फैटी लिवर की वजह से और डी रेंज एलएफटीज की वजह से है। लेकिन ऑटोइम्यून वाले या दूसरे कॉजेज वाले वायरल हेपेटाइटिस वाले वो कम नहीं होते इन चीजों से, एएलटी बहुत ज्यादा। तो दैट वुड बी आफ्टर 3 months टाइम आई वुड से कि भाई फैटी लिवर के अलावा भी कुछ हो सकता है, तो आई वुड लाइक टू गो फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ ऑटोइम्यून। टेस्ट क्या अवेलेबल है इनिशियली, तो ज़ाहिर है एएनए प्रोफाइल इट्स वाइडली अवेलेबल, वी डू दैट। स्टिल इंडेक्स ऑफ सस्पिशन ज़्यादा होता है एएनए प्रोफाइल में, एएसएमए एएमए हमारे पास अवेलेबल होता है। एएमए इज मार्कर फॉर प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, एएसएमए फॉर द ऑटोइम्यून। लेकिन कई दफ़ा ये भी नेगेटिव होते हैं, तो अगर हमारा इंडेक्स ऑफ सस्पिशन बहुत ज़्यादा होता है तो वी गो फॉर एक्सटेंडेड ऑटोइम्यून लिवर प्रोफाइल। अब ये स्पेशलाइज्ड टेस्ट है जो लिमिटेड लेबोरेटरीज में अवेलेबल है। अभी कराची में हमारे पास लकीली 2-3 सेटअप हो गए हैं पहले, लेकिन जब हमने शुरू किया था स्क्रीन करना तो हम सैंपल्स को इस्लामाबाद भेजते थे शिफा इंटरनेशनल के अंदर, वहाँ से वो टीसीएस करते थे सैंपल्स हम लोग, और वो पे ऑर्डर के साथ उनका दे यूज्ड टू सेंड अस रिपोर्ट इन ईमेल, और वो ईमेल में आ जाती थी। अभी कराची के अंदर 2-3 लेबॉर्ट्रीज हैं जो कि कर रही हैं, जिसमें जाउद्दीन है और जिनासन मेडिकल यूनिवर्सिटी की हमारी लैब है जहाँ पे ये स्क्रीनिंग अवेलेबल है। चुगताई के पास शायद अब अवेलेबल है ये जो एक्सटेंडेड ऑटोइम्यून लिवर प्रोफाइल वाले टेस्ट हैं। तो ये टेस्ट हम आमतौर पे करते हैं, इनमें इनके मार्कर्स पॉजिटिव आ जाते हैं। जो इसमें एसएलपी है, सॉल्युबल लिवर पैंक्रियाज है, LP1 LC1 एंटीबॉडीज होती हैं, रो52 होती है, और कुछ और एंटीबॉडीज हैं जो कि मार्कर्स ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के मार्कर के तौर पे हम उनको पिक करते हैं, देन वी कैन डायग्नोज दिस पेशेंट। लेकिन इन मेनी केसेस खाली ऑटो एंटीबॉडीज के ऊपर डायग्नोज नहीं होता। इफ वी आर सस्पेक्टिंग ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस वी हैव टू गेट द लिवर बायोप्सी टू कंफर्म इट, और उसको एक्टिविटी डिजीज एक्टिविटी और ग्रेड को आपको डॉक्यूमेंट करना होता है विद बायोप्सी बिफोर ट्रीटिंग दिस पेशेंट ऑन पुटिंग देम ऑन इम्यूनोसप्रेसिव। सो दैट वाज योर क्वेश्चन। काउंसलिंग ऑफ दिस पेशेंट अगेन के ओबेसिटी पेशेंट की है, इन एनी केस आपने उसको वेट लॉस और एक्सरसाइज के ऊपर, सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर है तो जो हमारे पास फिलहाल अवेलेबल हिस्ट्री नहीं है, तो अगर है तो उसको चेंज करना है, स्मोकिंग अल्कोहल को अवॉइड करना है, शुगर इंटेक्स कम करने होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो फैटी लिवर की मैनेजमेंट है
वो बेकरी एंड शुगर मैनेजमेंट है कि शुगर इनटेक क्या है। कॉमन हमारे सेटअप के अंदर है कि हम लोग जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, आइसक्रीम्स, बेकरी आइटम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे होते हैं। दैट इज वेरी हाई कार्ब इनटेक। खाली कार्ब इनटेक ही कम करने से मेनी ऑफ द टाइम यू विल सी द लेफ्टीज कमिंग नॉर्मल, अगर आप कार्ब इनटेक कम कर देते हैं। डायबिटिक पेशेंट है या नॉन डायबिटिक पेशेंट है, रिड्यूसिंग द कार्ब। यंग पेशेंट्स के अंदर, ये फीमेल हो मेल हो, ये एनर्जी ड्रिंक्स पीने का बड़ा रिवाज है। अल्कोहल हम हिस्ट्री ले लेते हैं, मेनी ऑफ द पीपल वुड से अल्कोहल नहीं है, लेकिन बियर अगेन इज वेरी फुल ऑफ कार्ब्स इवन इफ इट इज नॉन अल्कोहलिक। सो ये हमारी जो हिस्ट्री के एस्पेक्ट्स हैं वो हमें देखने होते हैं कि पेशेंट ले क्या रहा है, उसकी डाइट करें, उसके लाइफस्टाइल को जो है चेंज करें। स्मोकिंग की आप हिस्ट्री लेंगे, शीशा पी रहे होंगे सुबह शाम, लेकिन दे वोंट काउंट इट फॉर स्मोक। सो यू एज ए ट्रीटिंग फिजिशियन शुड नो दिस फ्लॉज के जो हिस्ट्री के अंदर कॉमन हमारे गलतियां हो जाती हैं। Counseling part, again, lifestyle management. That is the cornerstone, and then the most effective therapy for fatty liver. Medications, there are some which are coming up, लेकिन ये कि अभी तक कोई बहुत established role नहीं है। obeticholic acid recently शायद पाकिस्तान में लॉन्च हुई है कंपनी की तरफ से, बट अगेन इसका जो रिजल्ट्स हैं बड़े लिमिटेड से हैं। नवीद हैव गॉट सम कमेंट, लेट मी सी। अच्छा, if you go for anti-HBC total, HBPCR, and yes, in the patients where we don't find any very clear, so surface antigen negativity के ऊपर हम खाली hepatitis, chronic hepatitis B को exclude नहीं करते। As a routine in our setup, जो patients हमारे पास viral serology का negative है, या जिस तरह से ये patient है HCV anti-HCV positive PCR negative है, आते हैं to exclude के भाई क्रॉनिक एक्सपोजर हेपेटाइटिस बी का प्रीवियस एक्सपोजर तो नहीं था, या हिडन सीसीडीएनए वगैरह पहले से तो नहीं है कि ये हेपेटाइटिस कॉज कर रहा है, और फिर अगर पॉजिटिव है तो वी डू गेट द पीसीआर डन फॉर द बी एज वेल। सो वी डू इन आवर सेटअप टीएचबी को टोटल, जिन पेशेंट्स में हमें इमीडिएट कॉज सामने नजर नहीं आ रहा था डिरेंज लेफ्टीज का। Any other question or comment? जी ज़ीशान, डॉक्टर असद है। जी मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा कि इन ऑल दिस हिस्ट्री हमें एक और चीज़ जो है वो यू नीड टू आस्क व्हाट मेडिसिन और ड्रग्स पेशेंट हैज बीन टेकिंग, क्योंकि हमारे पास अभी दो वैल्यूज हैं। एक वैल्यूज इस पेशेंट की पुरानी है जो कि 2016 की है, और एक जो रिसेंट है नवंबर की। और जब वायरल सेरोलॉजी नेगेटिव है तो यूजुअली अब ये वेरी करती है प्रैक्टिस कि पेशेंट कितना कंसर्न है, हमें कितनी अर्जेंसी है। पाकिस्तान में नंबर 3 यही आती है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। वेट लॉस इज वन ऑप्शन दैट वी गिव टू द पेशेंट। अगर पेशेंट अफोर्डिंग है तो यूजुअली वी गो थ्रू द ऑल द पैनल जो हम लोग करते हैं, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे, जिसमें कोर आईजीजी है जिसका जिक्र किया गया, जिसमें ऑटोइम्यून लिवर प्रोफाइल है, कॉपर, सेरेब्रोप्लाज्मिन, आयरन के लेवल्स हैं, फेरिटिन, ट्रांसपेरेंट सैचुरेशन, और इसके साथ जो है आई एग्जामिनेशन जनरली हम रिकमेंड करते हैं केयरफ्रिंग के लिए। और ऑफ कोर्स हमने लिवर इलास्टोग्राफी की बात कर ली और लिवर बायोप्सी। लेकिन मैं अपना सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो प्रैक्टिस में होता है। अगर हेपेटाइटिस बी और सी नेगेटिव हैं, हिस्ट्री में कोई ऐसी दवाई नहीं है, एट टाइम्स जो है हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप वेट लूज करें, एंड वी वेट फॉर 6 to 12 वीक्स एंड सी LFTs improve or not। और बाज़ औक़ात कोई ऐसी दवाई भी हो सकती है जो पेशेंट ले रहा है, और अगर वो दवाई उसको बंद किया जाए तो उससे भी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बी वेरी केयरफुल। ये जो रिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं लेफोरा वगैरह जो कि पेशेंट्स ले रहे होते हैं, और उनकी वजह से भी ये इश्यूज आते हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अगर आपने अच्छा तगड़ा फैटी मील खाया हो, बिग मैक खाया हो मैकडोनल्ड्स का, या जिंगर, आजकल तो 3-3 पैटिस डाल के भी वो जिंगर बना देते हैं, तो मेरे ख्याल में अगले दिन कोई भी अपना ALT चेक कराएगा थोड़ा ज्यादा होगा। तो लेकिन एनी हाउ, बट इट्स समथिंग व्हिच इज प्रीटी ट्रांजिएंट। लेकिन ये सारी चीजें हमें ज़हन में रखनी होगी। जी ज़ीशान, if anything else you have to add?
जी जी असद, एक्सीलेंट। ये जो थोड़े कैविएट्स हमारे रह गए थे, अगेन दिस इज ओपन केस। जो असद ने बात की ना कि व्हाट इज द पेशेंट प्रोफाइल क्या है और आपकी प्रैक्टिस प्रोफाइल क्या है। एक बिजी क्लिनिक के अंदर और पेशेंट एक लिमिटेड कंसर्न के साथ आया है, बेसिक टेस्ट के बाद अगर नेगेटिव है, कॉमन कॉज है, वी मे गो फॉर दिस वेट लॉस और उसके बाद फॉलोअप पे करें। और इन्हें प्रॉपर एकेडमिक प्रैक्टिस अगर है तो उसमें प्रॉपर सारा वर्कअप करें, जिसमें विल्सन है और ऑटोइम्यून है और दूसरी मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं, एचबी को टोटल है। ये सारी चीज़ें एक एकेडमिक प्रैक्टिस का हिस्सा है। तो दोनों तरह की प्रैक्टिस हैं और मेरा ख्याल है दोनों अप्रोच में कोई गलत नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन योर टाइप ऑफ प्रैक्टिस एंड योर टाइप प्रोफाइल ऑफ योर पेशेंट, कि वो किस कंसर्न और किस तरह की कंसर्न के साथ आपके पास आया है। तो यू कैन गो फॉर कंप्लीट वर्कअप एंड डिस्कस इन एकेडमिक सेटअप, और go for a weight loss program and then follow this patient. जी फारूक, आपने कुछ क्वेश्चन करना है? अनम्यूट करें, आप क्वेश्चन करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, दो कंसर्न्स हैं। नंबर वन तो ये कि जिस तरह हमारे बी और सी सिरोसिस में क्रोनिक हेपेटाइटिस में हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इतने % जो है वो सिरोटिक होंगे और डिकम्पनसेशन में जाएंगे। उनमें से भी फिर जो नेफल डी है, इसके अंदर हम कितने % चांसेस हैं सिरोसिस डेवलप होने के और उसके बाद फिर डिकम्पनसेशन होने के। और दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा ये है कि इस दफ़ा जो पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी की मीटिंग हुई थी, उसमें ये था कि वो कह रहे उनका उसमें भी नैश जो है ना, इसको एज ए सब्जेक्ट लिया गया था और इसकी मल्टीपल एंडोक्राइन कॉजेज जो है वो डिस्क्राइब की गई थी। तो वो ये मतलब एक चल रही थी, बहस चल रही थी कि ये अब एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो है उनकी डोमेन है और ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट जो है उनकी डोमेन नहीं है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप प्लीज कंसर्न कर दें। जी Zeeshan, are you with us? Dr. Zeeshan, Uzair, is Dr. Zeeshan with us? No, sir, not right now. Okay. Farooq, thank you very much. Thank you very much for joining. मैं डॉक्टर असद चौधरी है। ये जो अब है ना, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। और अब ये मेटाबेसिटी और मैफल, ये जो इस तरह की अब बहुत सारी टर्म्स आनी शुरू हो गई हैं और बेसिकली इट्स पार्ट ऑफ दैट स्पेक्ट्रम। और अंडरलाइंग पैथोलॉजी एक ही है इन सब में। इट्स बेसिकली जो ये सारा स्पेक्ट्रम है। और अगर आप देखें, अगर आप वजन कम करते हैं, जिस तरह आजकल बैरिएट्रिक सर्जरी की बात होती है, जिन लोगों को बहुत कुछ चल रहा होता है, जब उनकी बैरिएट्रिक सर्जरी होती है तो सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है। तो और ये जो लड़ाई है ये मेरे ख्याल में जारी रहेगी। बट एट द एंड ऑफ द डे दवाइयों में हम भी, आप अगर बात करें, हम अच्छे ग्लाइसीमिक कंट्रोल की बात करते हैं, हम वेट रिडक्शन की बात करते हैं, कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें ये इससे रिलेटेड है। और इस पे ऑलरेडी एंडोक्राइन पीपल दे आर वर्किंग अ लॉट विद हेपेटोलॉजिस्ट। और नजर ये आता है कि ये कहीं ना कहीं पे ये सारा कुछ इकट्ठा हो ही जाएगा, क्योंकि जो हिट्स हैं इन टर्म्स ऑफ ये जो फैट रिलेटेड डैमेज है, ये सारे का सारा जो है ना, ये एक ही तरह का है, चाहे वो मायोकार्डियम में हो रहा है या इसके अंदर हो रहा है या किसी और ऑर्गन, जो 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 मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है इससे रिलेटेड। जो आपका पहला सवाल था जो रिगार्डिंग नैश एंड सिरोसिस था, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं है, बट इफ द पीपल हु हैव ट्रू नैश, आई थिंक उनकी वही प्रोग्रेशन है, 10 to 15 इयर्स में सिरोसिस डेवलप होता है। और आप ये भी ज़हन में रखें कि ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि नैश पीपल दे कैन
develop HCC even without going into cirrhosis. ये hepatitis B के अलावा इसमें भी देखा जाता है. तो that's why we always have to be on guard and be very very careful जब हम इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं. तो इसलिए फैटी लिवर को इग्नोर नहीं करना चाहिए. मैं अपने पेशेंट्स को जनरली यही समझाता हूँ, जिस तरह हमारे गुजरांवाला में आपको बेतहाशा ओबेसिटी मिलती है. हर 20 बंदे के LFTs डिरेंज नहीं होते, लेकिन अगर LFTs डिरेंज होने शुरू हो गए, इसका ये मतलब नहीं कि ओबीस ने अपना वजन कम नहीं करना, लेकिन अगर LFTs डिरेंज होने शुरू हो गए हैं तो प्रोग्रेशन टू सिरोसिस बिकम्स वेरी रियल और आपको वो सारी चीजें देखनी पड़ती हैं. अनफॉर्चुनेटली लिवर बायोप्सी हमारे यहाँ इतनी वोग में नहीं है और पीपल डू नॉट एग्री टू बायोप्सी, बट मेरे ख्याल में होनी चाहिए. और वेट रिडक्शन, और अब एक और चीज आप लोग भी देख रहे होंगे, डॉक्टर नवीद असलम इज आल्सो हियर फ्रॉम गुजरांवाला. आई थिंक उनका भी एक्सपीरियंस है. अब बहुत सारी दुनिया स्लीप गैस्ट्रेक्टमी और इन चीजों की तरफ जा रही है. एंड आई हैव सीन पीपल विद सम वेरी गुड रिजल्ट्स जिनका 10-20 किलो वजन कम हुआ है, जो कि अदरवाइज पॉसिबल नहीं था, जिनके LFTs बेहतर हो गए और मेटाबॉलिक प्रोफाइल और बहुत सारी चीजें बेहतर हो गई. जी थैंक यू. सर एक और बात थी कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिसमें नैश का जो डायग्नोसिस है गाइडलाइंस के मुताबिक तो ऑन द बेसिस ऑफ लिवर बायोप्सी ही होना चाहिए. तो हमें मतलब क्लिनिकली नैश कब सस्पेक्ट करना है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ LFTs? या जनरली तो यही होता है. आई विश कि हम लोग बायोप्सी कर सके. LFTs जो लिवर इलास्टोग्राफी है और जो इसकी जो कैप स्कोर्स अगर इलास्टोग्राफी के साथ हो जाए तो वो एक अच्छा आइडिया दे सकते हैं लिवर का. ऑब्वियसली अब जो इससे आगे की चीजें हैं, लिवर के अंदर फैट की दूसरी MRI वगैरह, वो इतनी प्रैक्टिकल नहीं है. और अभी ये हो रहा है. आई थिंक इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इसके ऊपर फोकस बहुत ज्यादा है, क्योंकि हेपेटोलॉजी में हेपेटाइटिस C जो एक बहुत बड़ा थ्रेट था उसको टेम कर लिया गया है. बी को भी काफी हद तक क्योंकि बी पे अभी काम हो रहा है. और अब नैश एक बहुत बर्निंग टॉपिक है इसमें. और प्रोबेबली इसकी जो पैंडेमिक है वो तो हर चीज को, नॉट इवन इन आवर सेटिंग बट इवन इन यूरोप अमेरिका ये बहुत ज्यादा है ओबेसिटी और इससे रिलेटेड इशू. तो ये सीन है. आई एम सॉरी, मेरा ख्याल है मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था. Asad, where were we? I got my net disconnected actually. जी Zeeshan, just give me a minute. Zeeshan, हम बेसिकली डॉक्टर फारूक का क्वेश्चन जहाँ से शुरू हुआ था वो ये था कि आप एंडोक्राइन क्लेम कर रहे हैं नैश को, तो आपका ट्रीटमेंट क्या है? वो कहते हैं इसको हमने ट्रीट करना है, अब आप लोग छोड़ दें इसको. नहीं, इसका मैं बता रहा था कि 2 years back we had a debate between Professor Wasim Jafri and one of the renowned endocrinologists, and it was the same debate. और ये डिबेट जो है पिछले 2-2.5 साल से हेपेटोलॉजी में और एंडोक्राइन में चल रही है. NAFLD is a multi-system disease. It's not just liver, but when it comes to fatty liver or NASH is a particular thing which endocrinologists may not be that good at treating with. On the other way around, जो argument है कि जो treatment options available हैं वो ज़्यादातर वो treatment options available है जिससे endocrinologist जो है वो ज़्यादा वर्स हैं, because insulin resistance और जो medications आ रही हैं GLP-1 जो है और pioglitazone है, ये जो सारी दवाएं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस पे, इंसुलिन रेजिस्टेंस इज थॉट टू बी द पिवटल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द नैश ना. तो जो ट्रीटमेंट है वो ओवरलैप कर रही है बिटवीन द एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशन लिवर फेलियर की है वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट में नॉट बी ए गुड. तो इट हैज टू बी, जो मेफिल्ड का टर्म यूज हुई है मेटाबॉलिक फैटी लिवर डिजीज, उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज हुई है कि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके मल्टीपल फेसेस हैं. वन ऑफ द फेस इज नैश. ठीक है ना. अब वो नैश अगर प्रीडोमिनेंटली लिवर फेलियर की तरफ जा रहा है तो इट हैज टू बी टेकन बाय द हेपेटोलॉजिस्ट.
लेकिन उसके जो दूसरे कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स हैं और उसके जो डिफरेंट मेटाबॉलिक अरेंजमेंट्स हैं, दे कांट बी डेल्ट कंप्लीटली विद द हेपेटोलॉजिस्ट। अब जो ओबेसिटी वाला एस्पेक्ट है, वेट लॉस प्रोग्राम एक हेपेटोलॉजिस्ट शायद इतना अच्छा नहीं मैनेज कर पाएगा जितना अच्छा एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मैनेज कर रहा होगा, ठीक है ना। इंसुलिन रेजिस्टेंस का एस्पेक्ट जो है उस तरह से नहीं देख रहा होगा शायद जिस तरह से एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट देख रहा होगा। तो इट इज evolving into a multi-system disease, and with multiple specialities managing these patients. So a complicated disease hai, and we are going to deal with in a multi-pronged strategy. Thank you. I think it's about time. If there is nothing else, then Kiran, do you have anything to add? मेरा chat में question आ रहा है. Have you responded to that question, sir? जो hepatitis B core positive और anti-HBs negative patient की treatment, what would be the treatment for these patients? No, please go ahead. मैं मोबाइल से join कर रहा हूँ तो मुझे. I just opened the chat and there was a question. So basically anti-HBs negative है और HB को total positive है. Treatment exposure confirm करती है कि B को शायद exposure है, but causative relationship between the liver pathology and the B is still there. क्योंकि B के अंदर अगर anti-HBs positive भी हो तो straight away treatment indication नहीं बनती है. Treatment indication के लिए जो है या liver decompensation हो, significant fibrosis हो, liver inflammation हो या high viral loads हो, इन सारे options को हम देखते हुए और फिर then we weigh these evidence and we plan कि treat करना है नहीं करना. Similar would be this case कि HB को total का positive आना exposure confirm कर रहा है, disease activity है या नहीं है, fibrosis है या नहीं है, viral replication है या नहीं है. इन तीनों सवालों के जवाब उन्हीं तीनों तरीके से दिए जाएंगे जिस तरह से एंटीजन पॉजिटिव पेशेंट के वर्कअप में देते हैं कि ALT बढ़ा हुआ है या नहीं है, वायरल रिप्लिकेशन PCR बढ़ा हुआ है या क्वांटिटेटिव सरफेस एंटीजन जो है वो है या पॉजिटिव आ रही है नहीं आ रही है. इन दिस केस क्वांटिटेटिव नहीं आएगी क्योंकि सरफेस एंटीजन नेगेटिव है. और फिर इन्वेजिव या नॉन इन्वेजिव फाइब्रोसिस मार्कर्स को देखते हुए ये डिसीजन लिया जाएगा कि ये ट्रीटमेंट कैंडिडेट है या नहीं है, ठीक है ना. सिरोटिक पेशेंट है, डिकम्पनसेशन की तरफ जा रहा है तो इन एनी केस दैट वुड बी ए डिबेट के लोग कहते हैं कि PCR नेगेटिव पेशेंट को ट्रीट करें ना करें, बट मैनी आर देयर वुड से कि कर दें, हर्ज कोई नहीं है. समबडी वुड से कि नहीं जी PCR अगर नेगेटिव है तो ना भी करें. तो क्या हम HCC प्रिवेंट कर पाएंगे इसमें? सो दैट रिमेन्स ए डिबेट. लेकिन ये है कि अगर कोर पॉजिटिव है, सरफेस एंटीजन नेगेटिव है, ये एक्सपोजर कंफर्म कर देता है. यही चीज सरफेस एंटीजन पॉजिटिव होती है तो करती है, लेकिन ट्रीटमेंट की डिसीजन वायरल रेप्लिकेशन, डिजीज एक्टिविटी और फाइब्रोसिस या डिकम्पनसेशन लिवर डिजीज के ऊपर डिसाइड करना होता है और वो उस तरह से ही होगा. थैंक यू ज़ीशान. और डॉक्टर फारूक, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि इंशाल्लाह ये जो नैश और NAFLD पे हमारे 3-4 सेशंस लाइंड अप हैं. आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, मे बी फरवरी से हम वंस अ मंथ, क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आफ्टर वायरल हेपेटाइटिस फॉर दिस एको प्रोग्राम. Kiran, over to you, please. Thank you very much, Dr. Zeeshan, for your time. और जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करी थी कि अगर आपको कोई केस प्रेजेंट करना है तो आप यू कैन कॉन्टेक्ट अस. हम आपको फॉर्मेट फराहम कर सकते हैं और इफ़ यू आर हेजिटेंट तो हम आपके लिए केस प्रेजेंट भी कर सकते हैं. वी डू इनकरेज कि आपकी तरफ से केसेस आएँ. And we are grateful and thankful to Pakistan Society of Hepatology and Ferocins Laboratories Limited. And I would like to thank our chairman, Parsa Trust, Chaudhry Suhail Akhtar, Dr. Asad Ali, our director, Dr. Amna, our facilitator, Uzair, our coordinator, and Haris for IT support. Allah Hafiz. Uzair, you can call off the meeting, please. Thank you very much, ma'am. I'm going to call off this meeting. Allah Hafiz to all of you.